Okay. My question is, Subhash, how we document our requirement in waterfall? Subhash? Hello, am I audible, sir? Yeah, audible, audible. Yes, sir. Yes, sir. You are asking? How we document our requirement in waterfall? So BRD FRD, sir. Okay. Venkat, how we document our requirement in Agile? एक्चुअली वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही। Okay. My first question, how we document our requirement in waterfall? We have taken the requirement from the client and how we document in waterfall. If we are following the waterfall methodology, how we document our requirement? The answer given by Subhal is the BRD FRD. Okay, the answer is correct. Venkat, have you understood the question? Yes, yes. Okay. Now the question is, now if you are following the agile, how you document your requirement? हम लोग एग्जांपल स्क्रम देख लिया तो उसमें क्लाइंट हम लोग को जो जो रिक्वायरमेंट देते हैं हम लोग को उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देते हैं। वो वो जब भी वो चेंज रिक्वेस्ट डालता रहेगा वो चेंजेस उसमें डाल के हम लोग वो डॉक्यूमेंटेशन बना। Okay, so this is one of the interview question जो आज पूछा गया है लोगों से. Okay, so some of the student has given the interview. Same question था. So the answer is very nice Venkat. You have given the partially right answer, and it's fine also. हमने partially पढ़ा भी है अभी इसको. It's fine. So we document our requirement in waterfall in terms of BRD, FRD. We document our requirement in agile in form of product backlog, sprint backlog, and user story. Understood? Nancy, Subhash, Sarvesh, Venkat. Yes, sir. Again, I'm Nancy. Yes, sir. Yes, sir. How we document our requirement in Agile, Nancy? Sir, product backlog, sprint backlog, and user story. Very nice. So we document our requirement in Agile in terms of sprint backlog, product backlog, and user story. Now, Sarvesh, can you please tell me which application we are using to documenting our requirement in Agile? Okay, I think you missed yesterday class, Sarvesh, right? Sarvesh? Yes. कल की क्लास अच्छा हाँ my question is which tool we are using to document our requirement in Agile? सर एजाइल का नहीं मालूम है, का वाटरफॉल का मालूम है। वाटरफॉल का बीआरडी और एफआईडी करते हैं और हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं द वर्ड फाइल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड. नाउ नैन्सी यू टेल. अच्छा, आपने कल क्लास मिस की है क्या सर्विस? जी जी, कल का मिस किया था एक्चुअली, मेरा कोई बात मीटिंग नहीं. था तो मैं 10:30 बजे ऑफिस से गया था। जी जी, एक बार रिकॉर्डिंग जो है ना सर्विस आप देख लीजिएगा, बट अगेन आई रिपीट, डोंट वरी, मैं आज फिर से रिपीट करूंगा उसको. जी नैन्सी, Yes, sir. how we document our requirement? No, which tool we are using to document our requirement in Agile? Jira, sir. क्या बात है नैन्सी, क्लैपिंग का है मेरे रिकॉग्नाइज गेस्चर्स. फिर नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया. वेरी नाइस. आई वांट एवरीबॉडी टू क्लैप फॉर नैन्सी. इफ यू डोंट नो वेयर इट इज, रिएक्ट के ऊपर एक एरो है, वहां पे आप क्लिक करोगे, यू विल गेट. सुभाष. वेरी गुड वेंकट. सुभाष, आपको अच्छा नहीं लगा नैन्सी का आंसर? यू डिड नॉट लाइक व्हाट शी सेड? नो नो सर, नो सर, एक मिनट सर, मैं बस ढूंढ बाहर लो. एक्चुअली, बस एक मिनट। हाँ, ढूंढ लो, बाहर ढूंढ लो. ओके. सर्विस, यू आर आउटसाइड. यस। ओके, हैव यू फाउंड? मैंने क्या किया? Okay, okay. Subhas also replied. Very nice. ठीक है. So the answer is we document our requirement in Agile in terms of road backlog, sprint backlog, and
user story. We are documenting this in tool called Jira. बहुत बढ़िया. चलिए, let me open my screen, share my screen. अच्छा, लेट मी कम टू योर स्क्रीन. आई थिंक एक और चीज है guys, ना हम लोग जो आप चार चार पांच लोग हम लोग हैं, एग्जाम्पल वेंकट, नैन्सी, सर्वेश, सुभाष, हम सब वर्किंग है, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा अपने को. ठीक है, तो विल ट्राई टू एंजॉय आवर जर्नी एज अ लर्निंग, और चीज़ों को सीखते जाएंगे और अच्छे से एंजॉय करके बढ़ते जाएंगे. आप सभी दिन भर काम करके आते हो, मैं भी दिन भर काम करके आता हूँ. सो विल ट्राई टू एंजॉय द सेशन एज वेल. ठीक है, गाने नहीं गाने हैं. ठीक है, कभी कभी शायरी किसको सुनाना सुना देना, कोई बात नहीं, बट गाने नहीं गाने हैं. चलिए, अश्विनी, मेरा एक डाउट है. प्लीज हम आंसर. लोग वाटरफॉल में जो एफआरडी है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, हम्म. इसमें स्क्रम में उसको किस में हम लोग इक्वल कर सकते हैं? कौन सा डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू फंक्शन एफआरडी? देखो बताता हूँ. The question मेरा which is, क्वेश्चन. I understood your हाँ. question. Your question is, मैं explain करता हूँ, हाँ. question को explain करता हूँ पहले. The question is, we are having multiple documentation in our waterfall. Okay. In waterfall, let me write it down first. In our waterfall, we are having documentation called BRD. In BRD, we are having all the requirement, right? Now, then we are having FRD. इन एफआरडी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बीआरडी एफआरडी बचा हुआ है सेशन अपना, बट ऑन हाई लेवल ऑल रिक्वायरमेंट रहता है यहाँ पे, प्लस सोल्यूशनिंग रहती है इसमें, कैसे सोल्यूशन करने वाले हैं, ये हम वाटरफॉल में करते हैं. इसके लिए वी आर हैविंग द वर्ड फाइल, जैसे सर्विस में बोला. दोनों चीज वर्ड फाइल में रहती है, या फिर कई बार ये एक्सेल में भी रहता है, बट जो मैंने देखा है वो वर्ड फाइल में देखा है. बट यस, इन सम ऑफ माय फ्रेंड्स प्रोजेक्ट और सम ऑफ द स्टूडेंट प्रोजेक्ट हु बिकम द बिजनेस एनालिस्ट, उनका इट वाज इन एक्सेल ऑल्सो थोड़ा बहुत. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेंकट कि सर, नाउ इफ वी वांट टू डॉक्यूमेंट द सेम इज अजाइल, करेक्ट, where we are going to document this thing, because we are having three line item: product backlog, sprint backlog, and the user story. In product backlog, we are having the plain vanilla set of requirement, one liner requirement रहती है, login page, sign up option. In sprint backlog, we are having in one sprint which all requirement we want to do. Now we are having another plane that is called the user story. In user story, you are having the detailed version of requirement, okay, and solutioning approach as well. यूजर स्टोरी में आपकी सब कुछ लिखी रहती है. वेंकट, ओके, इसमें वो है ना, फंक्शनल नॉन फंक्शनल सब चीज मिला के यूजर स्टोरीज के सब अंदर आ होता जाती है. हाँ, सब आ जाती है. अब क्या होता है, इन अवर बीआरडी वी हैव मल्टीपल सेक्शन, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, बैकग्राउंड, ये सब चीजें होती हैं, राइट? बट इन अवर यूजर स्टोरी वी विल हैव द ओनली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और उस रिक्वायरमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन. योर यूजर स्टोरी कैन बी ऑल्सो हैव लाइक वन पेजर, बट वो रहेगा इन द एप्लीकेशन कॉल जीरा ओनली. तो यूजर स्टोरी कैन बी लॉन्ग एज वेल. Okay, so once we will write the user story in Jira, you will get the more idea. But to answer your question, we are having place called user story in Jira, where we are going to write the things we are going to write in BRD and FRD. Venkat, है. यस यस, समझ गए. understood? So हम्म. user story will be very detailed one. Okay. Yep. चलिए. And once we complete this Scrum का section ना, we will directly jump to Jira only. जो भी मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, सारे हम एक्चुअली बना करके देखेंगे. ओके,
That is practical for us. Now, the next definition that is loaded is a product backlog. Service, can you please read this? The product backlog is an evolving prioritized queue of business and technical functionality that need to be developed into a system. Very good. So what is a product backlog? Product backlog is a prioritized list of business and technical requirement जो हमें सिस्टम में बनानी है. जैसे what was our project? Axis बैंक मोबाइल एप्लीकेशन. इसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है आपकी? पहला रिक्वायरमेंट है आपका लॉगिन पेज, सेकंड इज साइन अप ऑप्शन, थर्ड इज यूपीआई, फोर्थ इज फंड ट्रांसफर, फिफ्थ इज फिक्स डिपॉजिट, सिक्स्थ इज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. तो ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं प्रायोरिटी क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस इज अ प्रोडक्ट बैकलॉग. तो व्हाट इज अ प्रोडक्ट बैकलॉग? प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, दैट्स इट, विच इज प्रायोरिटाइज बाय द क्लाइंट. क्लाइंट ने जिस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करके लिस्ट बना के दिया है हमको, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट बैकलॉग. नाउ प्रोडक्ट बैकलॉग क्या लिखा हुआ है? नैन्सी, कैन यू प्लीज रीड दिस? Yes, sir. Requirements are listed in the product backlog. List features, functions, technologies, enactments, bug fixes, etc. to be applied to the product. Okay, this is enhancement. Okay, Sorry. नहीं बाबा सॉरी की बात ही नहीं है. अभी ना फर्स्ट टाइम आप इन वर्ड्स को सुन रहे हो. ओके, जब आप इसको बार बार सुनोगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी. व्हेन आई स्विच इनटू करियर बी, मेरे को समझता ही नहीं था क्या होता है ये. लेट मी टेल यू वन ऑफ द एक्सपीरियंस, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए. ओके, एक वर्ड होता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन. ओके, so when I joined as a BA, when I started with the career, so I was also in your page only. जो आप लोग कर रहे हो वही मैं करता था. I was also in bank. Okay, so when I switched my career, then I have the question from the developer. He said, "Ashwini, go and check in front end कि what is the issue." Okay, then I asked she was a girl. I asked her कि what is front end. तो actually इतना नहीं पता आपको? हम नहीं पता. देन सी टोल्ड कि ओके फ्रंट एंड मतलब ये होता है, एक स्क्रीन होती है. तो वेन एवर वी आर लुकिंग एनी ऑफ द स्क्रीन, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है आपकी किसी भी एप्लीकेशन की, जो आपको दिखती है अपनी आंखों से, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड. ओके, बट डाउन द लाइन जब मेरे को चीज समझ में आने लगी, आई डिड नॉट टेक द ट्रेनिंग एज वेल, तो वो चीजें पता नहीं थी मुझे उस समय. देन डाउन द लाइन चीजें पता होने लगी एंड और उसके बाद चीजें समझ में आ जाती हैं. तो बीए जॉब रोल इज नॉट अ टेक्निकल जॉब रोल गाइस, बहुत फंक्शनल रोल है ये, बहुत ज्यादा फंक्शनल रोल है. यहाँ कोई भी चीज ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप जाओ और जावा का स्क्रिप्ट लिख करके आओ, नहीं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक बार किसी ने फ्रंट एंड आपको अगर बता दिया तो समझ जाओ कि फ्रंट एंड क्या होते हैं. इन्हांसमेंट मतलब क्या हुआ? वट एवर द चेंज, आपकी अपनी एप्लीकेशन बनी हुई है, उसमें कुछ और नया ऐड करना है तो उसको इन्हांसमेंट बोलते हैं. हो गया. मतलब ये छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी इन योर प्रोजेक्ट. तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे ज्वाइन करते हैं, डो नॉट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन. जो भी आपको नहीं पता वो आप पूछो. एक और चीज है, अगर आपको हेजिटेशन आता है कुछ पूछने में, कुछ टेक्नोलॉजीज पूछने में, तो अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद ये मैसेज में कि सर ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, मुझे थोड़ा सा आप बता दो, मुझे पूछने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है वो छोटा क्वेश्चन है. तो अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगा ओवर द व्हाट्सएप, या मैं कॉल करके बता दूंगा. अगर कुछ ऐसी चीज होगी जो सच में आपको समझने की जरूरत है, देन यू विल कनेक्ट विथ योर सीनियर कि ये क्या है टर्मिनोलॉजी. मोस्टली मैं आपको आंसर दे ही दूंगा. बट एक और चीज है, ज्यादा सोचना मत अगर आपको क्वेश्चन पूछना नहीं पड़े तो इन द प्रोजेक्ट, जब भी आप ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि अब तो ज्वाइन कर लिया, अब तो एचआर से काम हो चुका है अपना, so we can ask the questions, right? So what is product backlog? Product backlog requirements are listed in the product backlog. Requirement are listed into the product backlog. मतलब जो भी requirements है वो आपके product backlog में list हो जाते हैं. What is product backlog?
प्रोडक्ट बैकलॉग इज योर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या होता है इसमें? फीचर, सोल्यूशन, सॉरी फंक्शन, टेक्नोलॉजीज, एनहांसमेंट, बग फिक्सेस, जो भी रिक्वायरमेंट आपका आता है, यू आर हैविंग ओनली वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट बैकलॉग। वहां पे आप जाकर के इसको डाल देते हो, एंड देन योर आइटम विल मूव फ्रॉम प्रोडक्ट बैकलॉग टू वेयर सुभाष? आपका आइटम प्रोडक्ट बैकलॉग से कहाँ मूव करता है? प्रिंट हाँ जी, स्प्रिंट बैकलॉग में करता। वेरी वेरी गुड सुभाष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुभाष। सो वी आर मूविंग और लाइन आइटम फ्रॉम प्रोडक्ट बैकलॉग टू स्प्रिंट बैकलॉग, और स्प्रिंट बैकलॉग में वी आर गोइंग टू क्रिएट द स्प्रिंट। ओके वेंकट, व्हाट इज स्प्रिंट? हेलो वेंकट, हाँ अश्विनी। व्हाट इज स्प्रिंट? अश्विनी रिकॉल नहीं कर पा रहा था। करो ना, वैसे टाइम दे रहा हूँ। व्हाट इज स्प्रिंट? हेलो। यस वेंकट, आई एम वेटिंग। हाँ हाँ, यस यस अश्विनी। स्प्रिंट वही हम लोग जो डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वही तो स्प्रिंट जो छोटा टुकड़ा। छोटा टुकड़ा। ओके, नैन्सी, व्हाट इज स्प्रिंट? नैन्सी, छोटा टुकड़ा मत बोलना, सर छोटा सर टुकड़ा जो बोलना। इटरेशन को ही हम स्प्रिंट बोलते हैं Yes, सर। राइट आंसर बाय वेंकट एंड नैन्सी, दोनों के आंसर सही हैं। वेंकट सेड द स्मॉल पीसेस सर, वी डिवाइड द इंटायर लार्ज प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड दिस स्मॉल पीस इज कॉल्ड द सर स्प्रिंट। What Nancy said, sir, we divide our large set of work into small iteration, and these iteration are called sprint. Very nice here. बहुत अच्छा। Now Nancy, question is coming to you. What is the normal sprint duration days? सर 14 to 21 days। अब देखो यहाँ पे ना 14 to 21 बोला आपने, यस, दोनों में ये से 7 days, 7 14 और 21 होता है सर, सॉरी। जी मैम, 7 days 14 in और multiplied of 7 days 7 के रहेगा वो। मल्टीपल में रहते हैं हम। 7 के मल्टीपल में रहता है सर, या तो 7 होगा, या तो 14 होगा, या 14 तो होगा, 21 होगा। 21 होगा द ठीक मैक्सिमम है, लिमिट। हाँ, बट मोस्टली हम बोलेंगे सर या तो 14 और, नैन्सी जी 14 टू नहीं बोलना है। 14 टू मतलब फिर तो 18 भी हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, वी विल हाँ। से सर या तो 14 होगा या तो 21, बट इन माय प्रोजेक्ट सर वेयर आई वाज वर्किंग, वी वर हैविंग द 14 डेज का स्प्रिंट। ये कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है, नैन्सी, सर्वेश, सुभाष एंड वेंकट। तो जहां पे मैं काम करती थी उस वाले प्रोजेक्ट पे 14 डेज का स्प्रिंटेशन रखते थे। ठीक है, चलिए। यस सर। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर द, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट देगा वो आप प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल दोगे। आपको कई बार ऐसा लगेगा बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मैं करूंगा, आई विल रिपीट मल्टीपल टाइम्स, आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ द प्रोडक्ट बैकलॉग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये? प्रोडक्ट मार्केटिंग, सेल्स, इंजीनियरिंग, कस्टमर सपोर्ट, बट जो मेन सोर्स रहता है दैट इज द client requirement. Your product backlog is mostly generated from your client requirement. आपके client के requirement से आपके
प्रोडक्ट बैकलॉग जनरेट होते हैं. नाउ अनदर रूल, अनदर इंपॉर्टेंट रूल इज द प्रोडक्ट ओनर. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था स्क्रम मास्टर क्या रोल क्या होता है. सुभाष, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर? 2-3 रोल बताओ सर, क्या करता है स्क्रम मास्टर? सर स्क्रम मास्टर मॉनिटर करता है, वो शेड्यूलिंग ऑफ मीटिंग करता है, स्क्रम मीटिंग्स का डेली का. और एक सेंसर माइंड कर लेता है. एक मेन पॉइंट है उसका जो आपको मैं बोला था, इसको बोलना ही है. टाइम बाउंड होता है क्या टाइम बाउंड होता है? सर. सर वो स्क्रम एक्चुअली होता है, स्क्रम प्रोसेस जो अरे होता है मैं टाइम क्या बाउंड होता पूछ है. रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो सुभाष सर? आई एम आस्किंग व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्क्रम मास्टर. टाइम बाउंड कैसे होगा सर? सुभाष जी बोलिए. टाइम सर देखिए, याद बोलिए, कर कोई रहे सर. बात नहीं, याद कीजिए. सर्विस. वो मैनेजमेंट के भी मीडिएटर होता है, ही इज द मीडिएटर ऑफ द और मैनेजमेंट एंड. सोचो थोड़ा सा, अब मैं एक पॉइंट चाह रहा हूँ जो आप नहीं बोल रहे हो. सोचो, आप नोट्स में देखो. सर्विस. जी सर. सर्विस लास्ट की 2 क्लासेस जो थी ना, वो बहुत हम्म. इंपॉर्टेंट है. उसको आप गो थ्रू जरूर करो. देखिए वहां हमने अजाइल स्टार्ट किया है. ठीक ओके. है, तो जिसके प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, स्क्रम, ये आपको समझेगा. तो लास्ट की 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जी. ठीक है, हाँ, बताइए इसके बाद फिर. चलिए, लेट मी गिव चांस टू नैंसी. Sir, it works as a bridge between the developer team, मतलब in a whole team, मतलब वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते हैं. लेट्स सपोज कोई किसी चीज में कोई अटक रहा है तो उसमें हेल्प करते हैं. स्क्रीन शॉट में जाइए नैंसी जी. जस्ट अ सेकंड सर. वेंकट, वुड यू लाइक टू गिव आंसर? सर हाँ नैंसी प्रोसेस बोलो. ट्रैक करते हैं और टीम को फोकस रखते हैं, मेकिंग प्रोग्रेस एंड immediate decisions at scrum meeting, makes immediate decisions at scrum meeting, record impediments and resolves ESOP. एक पर बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने बोला. यस सर, उसका रिस्पॉन्सिबल कुछ फॉर इंश्योरिंग दैट स्क्रम वैल्यूज. यस सर. nexus between management and the team. नो, नो नो नहीं, मैं भी नो मतलब एग्जैक्टली राइट है ये भी आंसर कि इज द नेक्सस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द टीम. एक जो पॉइंट है वो ये बोला था मैंने, जो बात मैंने बताया. सर बिजनेस एनालिस्ट स्क्रम मास्टर इज द पर्सन हु ट्राई टू मेक श्योर ऑल द स्क्रम वैल्यूज आर इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड. Yes sir. स्क्रम वैल्यूज में क्या होता है, इस पे आपके पास बैकलॉग बनते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग बनते हैं. यू आर क्रिएटिंग द स्प्रिंट, यू आर फॉलोइंग द 14 डेज का स्प्रिंट, राइट? ये उसको Yes. फॉलो करवाता है. ये आपको बोलना है, आप सब लोग याद रखिए. यू नीड टू से द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर इज टू इन मेक श्योर ऑल द स्क्रम वैल्यूज आर इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड. ठीक है, Yes. उसके बाद जो है पॉइंट आपने बोले वो सब सही है. वेंकट अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. सर्वेश, यस. नैंसी Yes sir. एंड सुभाष. Yes sir. चल, now there is a new role, that is a product owner. Okay, Venkat, can you please read this product owner? Product owner. Only the product owner is the responsible for managing and controlling the product backlog. The product owner is one person, not a committee. No one is allowed to tell the team to work from different set of priorities.
all of the decision of the product owner makes are highly visible, reflect prioritization of the backlog. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ओनर एक पर्सन होता है इन द टीम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग। एक इंटरव्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन है वाला, दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। अच्छा, जो मैं आपको बोलता हूँ ना क्लासेस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको बहुत आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप नोट डाउन किया करो। ओके, लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन, बिकॉज दिस इफ दिस क्वेश्चन विल कम टू यू इन द इंटरव्यू एंड ही विल आस्क यू, तो आपको लगेगा हाँ ये मेरे को पहले से आता है एंड यू विल बी इजिली एबल टू गिव द आंसर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज who prioritize and manage the product backlog? This is the question. Who prioritized and manage the product backlog? So answer will be product owner is responsible for managing and controlling the product backlog. प्रोडक्ट बैकलॉग में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाइज विद द प्रोडक्ट ओनर। सो प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग। Okay, so he is one person, एक कोई कमिटी नहीं होती है, he is a single person. Example, we can have Venkat, Parvez, Ashwini can become the product owner. It's a higher grade role actually, guys. He own the product actually. उस वाले रिक्वायरमेंट, उस वाले प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं, एनहांसमेंट आते हैं, he will be responsible. Now, no one is allowed to tell the team to work from a different set of priorities. अगर एक बार प्रोडक्ट ओनर और क्लाइंट ने मिल करके प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, मतलब they decided I will go login page first, then they decide I'll go sign up option first, then they decide I will go balance inquiry. If the client and product owner decide, then this priority cannot be changed. So एक और क्वेश्चन है, who prioritize the requirement in the product backlog? Your answer will be product owner will prioritize the requirement in the product backlog. You can also say product backlog, sorry, product owner and client will prioritize your requirement. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, who prioritize the requirement in product backlog? आप सिंपल एक लाइन में बोल करके चुप हो जाना, प्रोडक्ट ओनर। The question will be who prioritize your requirement in product backlog? Will simply give the answer product owner and you will press stop. कुछ नहीं बोलना है उसके बाद। All the decisions the product owner makes are highly visible, reflected in prioritization of the product backlog. तो प्रोडक्ट ओनर क्या काम करता है, वो प्रायोरिटाइज करता है बैकलॉग को। ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बैकलॉग, जो भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उन सबको देखता है। ही विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि जो भी क्लाइंट ने प्रायोरिटी डिसाइड की है उस हिसाब से आइटम्स आर मूविंग फ्रॉम प्रोडक्ट बैकलॉग टू स्प्रिंट बैकलॉग। तो ही विल बी ऑन द प्रोडक्ट बैकलॉग। कई बार ऐसा भी होता है कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है but without permission of product backlog or product owner you cannot put that item into your product backlog because product owner responsible होता है product backlog का। तो आपको उससे पूछना है, उसको समझाना है, then only you will put that requirement into the product backlog. So this is the role of product owner. Nancy, Subhash, Sarvesh, Venkat, understood? Yes. Yes. sir. Yes, Ashwin. But Ashwini, अभी प्रोडक्ट ओनर आने के बाद पीएम का रोल क्या रहेगा? देखो अब यहाँ पे ना मैं आपको से दिखाता हूँ, एक मतलब अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ट्राई करना समझने का, नहीं हो तो वापस समझाऊंगा। नहीं, एक्चुअली हम लोग का क्या है ना, हम लोग प्रोडक्ट में मेरा टीम लीडर के ऊपर वो पीएम रहते हैं ना। एक मिनट रुकना है, आप बताओ पहले, आप बोल रहे हो टेक लीड, सबसे पहले वेंकट हाँ, इंपॉर्टेंट पर्सन, फिर टेक लीड, फिर पीएम रहते हैं। पीएम, फिर उसका ऊपर हम लोग तो मैक्सिमम पीएम तक के जाता है। डिलीवरी हेड, राइट? हाँ, डिलीवरी हेड रहते, राइट, करेक्ट। यस, क्योंकि आप लोग यहाँ से यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, तो मेरे को इससे ज्यादा मतलब रहता है। ठीक है, तो ये मेरा ज्यादा ज्यादा परेशान करता है, मेरे को इससे भी ज्यादा परेशान ये करता है मेरे को। ठीक है, तो अब योर क्वेश्चन है सबसे प्रोडक्ट ओनर कहाँ पे आता है, राइट? बिकॉज इन हायरार्की वी आर हैविंग, लेट मी टेल द हायरार्की गाइस फर्स्ट, आप सब लोग को हायरार्की बताता हूँ मैं। दिस द हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट टीम। सबसे पहले यहाँ पे आपकी एक टीम होती है जिसमें वी आर वर्किंग, कौन कौन? बिजनेस एनालिस्ट,
developers, tech lead. Okay, so developer will report to technical lead, and technical lead will report to project manager. Business analyst will directly report to the प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड उसके बाद क्या है यार कि दोनों की सेम हो जाती है डिलीवरी हेड की. नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग वन ऑफ द रोल, ये वाटरफॉल की बात होती है. ओके, तो वाटरफॉल उनका आप क्या, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी वेंकट, वाटरफॉल अजाइल? नहीं हम लोग के तो टिकट्स के ऊपर काम करते हैं ना. ओके, सो यू आर नॉट, बट टिकट यू आर मेंटेनिंग इन जीरा. नहीं सर्विस नाउ. ओके, सर्विस नाउ है. हम So mostly you are in waterfall only, because in you're not working the sprints, right? नहीं no. हाँ, तो you are in the waterfall. Okay. Now in agile क्या होता है, we are having one role called product owner. अब प्रोडक्ट ओनर जो होता है, दैट दिस मोस्टली ये रोल जो होता है प्रोडक्ट ओनर का रोल विल बी हैविंग विद द कंपनी जहां पे दे आर हैविंग द प्रोडक्ट और द एप्लीकेशन. इनके पास कुछ प्रोडक्ट रहते हैं और कुछ एप्लीकेशन रहते हैं. ओके, ओन रहते हैं, और ये प्रोडक्ट और एप्लीकेशन दे कैन यूज फॉर द मल्टीपल क्लाइंट, और या तो खुद के लिए यूज करते हैं. एग्जाम्पल, let me take a recording रहने का. So let me tell you about my product. Okay, so we are having one of the product called ABC. This product will be, let me remove everything. Okay, now let me tell one of the product called ABC. This is my product guys. जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास. This is my product. इस वाले प्रोडक्ट को वी आर गिविंग टू द मल्टीपल क्लाइंट. अवर क्लाइंट्स आर बैंक. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वेंकट ने. प्लीज गिव 100% अटेंशन. यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द प्रोडक्ट ओनर. प्रोजेक्ट मैनेजर यू नो, जिसको हम रिपोर्ट करते हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रोडक्ट ओनर कौन होता है. आपके पास एक प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, ठीक है. ये जो एप्लीकेशन है मेरा प्रोडक्ट, उसका नाम है एबीसी. This application we are using for the multiple bank. ICICI, Bank of America, we have HDFC, Kotak. सारे clients हैं हमारे, but product is same. The same product we are using for the different product, the different bank. अब ये इन सारे बैंक्स के लिए कस्टमाइज होता है. सर जैसे कि CRM. वेरी गुड, बहुत. कहाँ है ताली, कहाँ है? सेना के लिए भी नहीं है, वो भी होता हाँ, फिनेकल भी और CRM भी, ये दोनों मोस्टली बहुत सभी अच्छी बैंक बात में है. होता है. बहुत बढ़िया. फिनिकल पकड़ लो आप, सीआरएम पकड़ लो, दोनों एप्लीकेशन ये क्या होते हैं, ये सारे बहुत सारे बैंक्स के लिए यूज होते हैं, राइट. अब इस वाले फिनिकल का एक ओनर होता है. यू है वन ओनर जो डिसाइड करता है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी आर हैविंग फिनिकल, फिनिकल आप लोगों ने देखा हुआ है. तो फिनिकल इज अ प्रोडक्ट जिसके मोस्ट ऑफ द फीचर कॉमन रहते हैं. अगर इसमें टोटल प्रोडक्ट बिल्ड में 100 फीचर्स हैं, तो ये 100 फीचर में से आप समझो 60 फीचर सारों क्लाइंट के पास एक जैसे होते हैं, राइट. एंड उसके ऊपर से लोग कस्टमाइजेशन करते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सीआरएम बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका. सब लोग अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है. तो जो कस्टमाइजेशन होता है दैट विल बी डन बाय द डेवलपमेंट टीम. ओके, एंड डेवलपमेंट टीम में आपका होता है प्रोजेक्ट मैनेजर. वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमाइज कराने की. बट जो प्रोडक्ट ओनर रहता है, ही विल बी द पर्सन हु विल ओन द प्रोडक्ट. उस वाले कंपनी में इस वाले प्रोडक्ट को ये ओन करता है. ओन मतलब ये होता है, एग्जांपल, अगर ये रिक्वायरमेंट मेरे पास कोई नया क्लाइंट आया, ठीक है. करेंटली आई एम आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ ये अमेरिका, अमेरिका. कोटक. हाँ, नाउ आई एम हैविंग न्यू क्लाइंट. एग्जांपल, आई एम हैविंग इक्विटास. सेम प्रोडक्ट के लिए इक्विटास मेरे पास आता है. तो सबसे पहले माय प्रोडक्ट ओनर विल रीच देम. ये उनको जाएंगे, उनको बताएंगे हमारा प्रोडक्ट ये है.
Okay, then they will convince and they will ask the customization, then project manager will come into picture and then they are going to develop. बट प्रोडक्ट ओनर वो होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे की पूरे प्रोजेक्ट की, या एक प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई से एक रिक्वायरमेंट आई, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग आई, आरबीआई की कोई गाइडलाइन आई, और एक्चुअली वी आर वर्किंग फॉर द आरबीआई गाइडलाइन ऑनली. ठीक है, आरबीआई गाइडलाइन पे काम करते हैं हम लोग. तो अगर आईसीआईसीआई ने एक रिक्वायरमेंट दिया, तो ये रिक्वायरमेंट अगर हमें डेवलप करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट मैनेजर विल रीच आउट टू द प्रोडक्ट ओनर कि वी हैव रिसीव दिस रिक्वायरमेंट, हेल्प अस. या फिर आपको इस रिक्वायरमेंट को अपने प्रोडक्ट में डालना है क्या. फिर हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है कि वेदर दिस विल बी सुटेबल फॉर ऑल द क्लाइंट और नो, तो हाँ या ना बोलता है. दिस इज द एक्चुअल रोल ऑफ प्रोडक्ट ओनर, हु विल ओन द प्रोडक्ट. इन सम ऑफ द केसेस ये होता है आपके जो एक्चुअल केसेस जहाँ पे काम होते हैं. हैव यू अंडरस्टूड गाइस? प्रोडक्ट ओनर. Yes, sir. वेंकट, Yes, yes, Ashwin. सुभाष, सर्वेश. Yes. Okay. Now sometime we are working for the some of the, you can say, service based company as well. तो वहां पे भी they are deciding one head called product owner. Okay. So product owner will own the requirements. जो requirement आएगी आप उसके थ्रू ही जाओगे आप. तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो और प्रोडक्ट ओनर आपके पास है, तो हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर ना भी हो. ओके. एक और सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, प्रोडक्ट ओनर विल ओन वन प्रोडक्ट. ओके. एंड प्रोजेक्ट मैनेजर कैन मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3. बट प्रोडक्ट ओनर अगर है तो उसको इसी वाले प्रोडक्ट की सारी जानकारी होगी. प्रोजेक्ट मैनेजर है, सो ही कैन वर्क विद द मल्टीपल क्लाइंट्स एज वेल. अंडरस्टूड? सुभाष, वेंकट, नैन्सी. So, Yes. ओके. चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं वो क्या बोलता है. बिकॉज मुझे आंसर देने हैं, दैट शुड बी फ्रॉम. अच्छा, हाउ गाइस फ्रीक्वेंटली आर यूजिंग चैट जीपीटी? नैन्सी, वेंकट. पहले बहुत यूज करती थी चैट जीपीटी, जब वो स्टार्टिंग में आया ही था. अभी तो जेमिनी का यूज ज्यादा करती हूँ. उसका ब्राउजर वर्जन यूज करते हो आप? कौन सा सर? मतलब लैपटॉप पे यूज करते हो उसको? चैट जीपीटी? नहीं, जेमिनी. जेमिनी नहीं, एप्लीकेशन ही है, मोबाइल में इनबिल्ट है. ओके. अच्छा, S24 ना? हाँ सर. क्या है? What is the difference between? No, actually it's very good for me. Product. What is the difference between product Product owner and manager. and अभी कंफ्यूज ना कर दे, बस मुझे इस बात का डर है. अभी तो आप लोग समझ गया है ना डिफरेंस? नैन्सी, यस सर. सुभाष, Yes, sir. Yes. सर. Yes, sir. ओके. वेंकट. Yes, yes. कोर डिफरेंस जो होता है, प्राइमरी फोकस जो रहता है इसका प्रोडक्ट ओनर का, मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्ट वैल्यू, बिल्डिंग द राइट थिंग्स फॉर द यूजर. ओके. मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसी के ऊपर काम करता है ये. प्रोजेक्ट मैनेजर विल इंश्योर द प्रोजेक्ट डिलीवरी ऑन टाइम विद इन द स्कोप एंड बजट. प्रोडक्ट ओनर का माइंडसेट रहता है प्रोडक्ट के ऊपर एंड कस्टमर सेंट्रिक. इट इज हैविंग द डिलीवरी एंड एग्जीक्यूशन सेंट्रिक. प्रोडक्ट ओनर डिफाइन एंड प्रायोरिटाइज व्हाट शुड बी बिल्ड एंड प्लान एंड फ्लो. ठीक है, वही है. फाइन. ओन द प्रोडक्ट विजन एंड ऑल, प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है, इट्स फाइन. जो मैंने बताया गाइस वही है यहाँ पे भी. प्रोडक्ट ओनर अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर विल फोकस ऑन द इंटायर डिलीवरी. ओके. चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ अवर प्रोडक्ट बैकलॉग. प्रोडक्ट ओनर हो गया. स्प्रिंट. ओके. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंट दैट आई वाज आस्किंग फ्रॉम यू, वेंकट. वेंकट, कैन यू प्लीज रीड दिस?
Sprint is a set period of time during which specific work has to be completed and made ready for review. Fixed period of time, usually 14 to 21 days. A team let loose for the 21 day sprint. The scope of or nature of work being done cannot be changed. No one is allowed to add more functionality. No one can tell the team how to proceed. Correct. So first of all, sprint is a set period of time during which specific work has to be completed and made ready for the review. बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि अगर आपको स्प्रिंट पूछा जाता है तो क्या होता है, इट इज अ सेट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन. ये एक सेट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है. दिस इज द ड्यूरेशन ऑन विच स्पेसिफिक वर्क, जैसे हमारा स्पेसिफिक वर्क क्या था, लॉग इन पे साइन अप ऑप्शन, ये दो रिक्वायरमेंट थे, हैज टू बी कंप्लीटेड एंड मेड रेडी फॉर द review. Who will do the review? Client will do the review. Okay. So what is sprint? Sprint is a set period of time during which specific work has to be completed and made review for the client. Usually इसका टाइमिंग कितना होता है, 41 और 21 days. Okay. And team is actually focused on completing their work on the decided days only. Okay. सबसे important point है यहाँ का, actually हाँ, this is the main important point. The scope and nature of work being done cannot be changed. इसका मतलब ये है guys कि once we start the sprint, this is our sprint number 1. We start the sprint and we said, okay, we are going to develop the two functionality, login page and sign up option. We decided the duration of this sprint is 14 days. After 4 days, one client is coming and he's saying, no, I want some change in this. You will say straight no. अब कुछ नहीं हो सकता सर, या तो ये पूरा एलिमिनेट कर दूंगा मैं स्प्रिंट, या तो एक नया बना के आपको देना पड़ेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. एक तो आप 14 दिन के लिए डिसाइड कर रहे हैं. आज मैंने आपसे बात की कि आपको कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए है, आपने बोला मुझे लॉगिन पे साइन अप ऑप्शन चाहिए. मैंने आपको समझाया सर ऐसा एप्लीकेशन आपको मिलेगा. यू सेड यस. हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया. 4 दिन बाद आप आके बोल रहे हो 14 डेज के काम को कि यहाँ पे चेंज है. नॉट पॉसिबल. नो नो, नॉट पॉसिबल. एक बार जब आपका स्प्रिंट स्टार्ट हो जाता है, देन द स्कोप मतलब कितना काम है एंड नेचर ऑफ वर्क कैन नॉट बी चेंज. नो वन इज अलाउड टू ऐड मोर फंक्शनैलिटी. एक बार जो फंक्शनैलिटी आपकी डिसाइड हो गई स्प्रिंट में और आपका स्प्रिंट स्टार्ट हो गया, देन यू कैन नॉट चेंज इट. आप ऐड नहीं कर सकते हो. नो वन कैन टेल द टीम हाउ टू प्रोसीड बिकॉज ऑलरेडी आपने स्प्रिंट में डिसाइड करके रखा है और आप उसी वे में आगे बढ़ोगे. वी प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द क्लाइंट कि सर जो रिक्वायरमेंट आपको चेंज चाहिए वो ले लो, बट हम इतना फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं देंगे कि हम रोज आके चेंज दो हमको. ओके. So in a sprint, once the sprint will be started, we will not allow user to change any of the functionality. एक बार sprint start हो गया तो हो गया. Guys understood sprint क्या होता है और कैसे काम करते हैं sprint में हम लोग? नैन्सी, सर्वेश, वेंकट, sir. सुभाष. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Now our Sir, next topic. हाँ बताइए. one point, sir. जो थर्ड वाला पॉइंट है, टीम इज लेट लूज फॉर 21 डेज स्प्रिंट, इसका थोड़ा सा मतलब क्लियर. बताता हूँ. इसका मतलब ये है सुभाष कि टीम विल बी फोकस टू कंप्लीट द स्प्रिंट ऑन द डिसाइडेड डे. हमने अगर 21 डेज में डिसाइड कर लिया है, then team is set, is 100% set to work their decided work in 21 days. That's why we are saying it is a time bound activity. ठीक सर. Okay. अगर वो स्प्रिंट अगर 21 डेज से अगर ज्यादा लगता है तो अश्विनी. Okay. Now let's try to understand the scenario. Question from Venkat is, we decided, okay, first of all, we are taking one requirement and that requirement is
कैसे हो गया डोंट नो। ठीक, नाउ वी डिसाइडेड our sprint number 1, and sprint number 1 we need to develop the two functionality. Yeah, sprint number 3, let's take sprint number 3, and we need to decide कि we are going to do the fund transfer, and fund transfer also we are going to do internal fund transfer and external fund transfer. We have did the planning and we decided we are going to complete this work in 21 days. We are having two developers, and then we decided we are going to complete this work. Now, due to any reason, किसी भी कारण से आपके एक डेवलपर का तबीयत खराब हो गई आफ्टर 10 days, he got sick due to any emergency and all, तो आपका ये जो स्प्रिंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, देन एग्जाम्पल आपका जो वर्क है वो 100% जो आपने वर्क दिया है वो आपका 50% ही वर्क हो पाएगा, बिकॉज आपका एक डेवलपर ही चला गया। देन you will create the new sprint and you will continue that work into that sprint. But this is a very exception scenario, and you will convey to the client as well. In this sprint we have not completed on time, there is a delay. You can increase the duration or you will allow me to create the new sprint for that. Most of the time ये sprint duration 21 days से 28 days का हो जाता है। They will not ask to create the new sprint, they will simply say okay कोई बात नहीं, आप 21 days को यहाँ पे 28 days में कर दो। But this is very exceptional scenario, mostly ऐसा होता नहीं है, because we are going to generate the same functionality. Sprint 1 में, sprint 3 में we decided we are going to generate the internal fund transfer, external fund transfer. That internal fund transfer, external fund transfer we are going to complete in 28 days, a part of 21 days. Venkat, Yes, yes, Ashwin. समझ गया। understood? हम्म। MC, Yes, sir. सुभाष, सर्वेश। यस सर। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन वेंकट पूछते हैं अनंती या सुभाष से सर्वेश आप लोग पूछते हो ना, ये सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और एक चीज मुझे अच्छी लगती है आप लोग के साथ कि आप लोग उसको प्रैक्टिकल समझने का कोशिश करते हो। ये ऐसे हुआ तो क्या होगा, वैसे हुआ तो क्या होगा। दिस इज द वेरी गुड वे टू क्लियर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन बहुत मुश्किल है कि पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग, पूछ सकते हैं, बट दे विल से हाउ यू डॉक्यूमेंट योर रिक्वायरमेंट इन अजाइल, दे नॉट आस्क व्हाट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। ओके, सो यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं या टॉपिक आप पढ़ते हो, उसको प्रैक्टिकली एनालाइज करना और प्रैक्टिकली विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, कैसा चलता होगा एंड ऑल, कि उसके बिना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आप कितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दूँ, मैं आपको 50 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा, 100 दे दूंगा, बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके तभी हेल्प करेंगे जब आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आता है, उसको प्रैक्टिकल पढ़ाई आपको आती है, उसके बिना नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है डोंट नो, आप लोगों में से कोई कर रहा है क्या ये? क्या कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट सैमसंग एसएम करके कुछ स्टार बना दिया, अब तो आप क्या कर रहे हैं? अरे कौन है ये? स्टार कैसे बना दिया आप लोगों ने? चलिए कोई बात नहीं। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट आर द स्क्रम सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आई डोंट वांट टू स्टार्ट टुडे बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द अजाइल सेरेमनीज एंड व्हाट आर द स्क्रम सेरेमनीज? ओके, दिस वेरी, हाँ बोलिए। जो 5 to 7 मिनट्स है उसमें एक बार जो पहला रिवाइंड है ना, एक बार मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल उतनी टाइम एक टाइम फ्रेम में बता पाएंगे क्या? तो इन लोग का रिवाइज भी हो जाएगा और मेरा फ्रेश अप हो जाएगा पढ़ने से पहले। ठीक है, अब व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, आई एम गोइंग टू गिव द ब्रीफ ऑन द स्क्रम लाइफ साइकिल। ठीक है, स्क्रम लाइफ साइकिल जो कि क्लास छूट गई थी सर्विस की, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, लेट मी क्लोज दिस। अरे पूरे स्क्रीन पे बना दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया ये फोन पे? या आप ही लोगों ने किया? नैन्सी आपने किया है ये? नहीं सर। तो सर्विस ने किया है? फिर ये क्षमताएं केवल ब्रह्मास्त्र वालों के पास है।
और आप ही दोनों के एकदम मस्त है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे स्क्रीन पे आ गया है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। जो से पार्ट गए, देखते हैं क्या है नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटरफॉल हमने पहले पढ़ा था सर्विस। टुडे वी हैव अंडरस्टूड ऑन द लास्ट क्लास, वी हैव स्टार्टेड अवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड द अजाइल। ओके, सो अजाइल Okay. में क्या होता है, वी आर ओके, लेट्स मी टेल यू कि वाटरफॉल में हम लोग कैसे काम करते थे। गाइस दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए वापस रिपीट करता हूँ, 5 7 मिनट लगेगा, इट्स फाइन। वाटरफॉल में ओके, वी आर गोइंग टू डेवलप ऑल द रिक्वायरमेंट एट वन। अगर मेरे पास एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आई नीड टू डू द मल्टीपल रिक्वायरमेंट, लाइक बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे फीचर डेवलप करने हैं मुझे। इन सारे फीचर्स को मिला करके टोटल फीचर हो गया 16। जब वाटरफॉल में मैं काम करता हूँ तो मैं सारे 16 रिक्वायरमेंट का एक साथ रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता हूँ, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। उन सारे 16 रिक्वायरमेंट को मैं डेवलप करता हूं एक साथ। उन सारे 16 रिक्वायरमेंट की मैं टेस्टिंग करता हूं एक साथ। उन सारे 16 रिक्वायरमेंट को मैं लाइव करता हूं एक साथ। दिस इज माय वाटरफॉल। इन वाटरफॉल वी डू दिस डॉक्यूमेंटेशन विथ हेल्प ऑफ बीआरडी एफआरडी। ये था वाटरफॉल में हमारा। फिर हमारा जी। नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड अजाइल। अजाइल क्या बोलता है, व्हाट अजाइल से, Agile divide your entire set of work. Agile divide your entire set of work into small iteration. छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। जैसे आपका ये एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, 16 हम्म। रिक्वायरमेंट थी। ये 16 रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इन छोटे छोटे रिक्वायरमेंट डिवाइड करने का मतलब ये है, अब हम 16 रिक्वायरमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, केवल यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन होगा, इसको मैं बोल देता हूँ स्प्रिंट। दिस इज माय स्प्रिंट। स्प्रिंट का ड्यूरेशन या तो 14 दिन होगा या तो 21 दिन होगा। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 14 दिन में कितना काम कर पाऊंगा। तो व्हाट आई एम डिसाइडिंग, आई विल बी एबल टू जनरेट ओनली 2 रिक्वायरमेंट, लॉग इन पेज एंड साइन ऑफ ऑप्शन। अब मैं ये केवल 2 रिक्वायरमेंट को ही प्लानिंग करूंगा, एनालिसिस करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, डेवलप करूंगा और टेस्टिंग करूंगा, और फाइनली मैं क्लाइंट को दे दूंगा। नाउ जब मैं पहले वाटरफॉल में काम करता था, मैं सारे एक साथ रिक्वायरमेंट क्लाइंट को देता था। अब मैं क्या कर रहा हूं इन द अजाइल, अजाइल डिवाइड माय इंटायर सेट ऑफ वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल स्प्रिंट, और मैं एक एक स्प्रिंट को क्लाइंट को देता जाता हूँ कि सर आप लो और इसको टेस्ट करो। वंस माई स्प्रिंट नंबर 1 विल कंप्लीट, मतलब मैं 2 रिक्वायरमेंट दी। सो इस वाले इफ स्प्रिंट 1 में आई विल डेवलप टू रिक्वायरमेंट। स्प्रिंट नंबर 2 में मैं केवल एक रिक्वायरमेंट डेवलप करूंगा, दैट इज फंड ट्रांसफर, 14 डेज। इन स्प्रिंट नंबर 3 आई विल डेवलप अगेन 21 डेज का एक बड़ा सा स्प्रिंट बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं 2 रिक्वायरमेंट डेवलप कर दूंगा। कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट का कर दूंगा, यूपीआई कर दूंगा, एंड देन स्प्रिंट नंबर 4। सो जो अजाइल जो वाटरफॉल में मैं काम करता था, आई वॉज डेवलपिंग द एंटायर प्रोजेक्ट एट वन। बट यहाँ पे जब मैं एजाइल में काम करता हूँ तो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट बनाता जाता हूँ और क्लाइंट को देता जाता हूँ। ये जो भी मैं काम करता हूँ, इसको बोला जाता है स्क्रम लाइफ साइकिल। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रम लाइफ साइकिल क्या होती है। दिस इज योर स्क्रम लाइफ साइकिल। इन द स्क्रम लाइफ साइकिल वॉट एवर रिक्वायरमेंट यू विल रिसीव, आपको 16 रिक्वायरमेंट मिले, आप 16 रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली, एक एप्लीकेशन होता है दैट इज कॉल्ड द जीरा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल जीरा में करेंगे, जो बात कर रहे हैं हमसे प्रैक्टिकल में जीरा में करेंगे। तो यू आर हैविंग 16 रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट ऑल द 16 रिक्वायरमेंट इन द प्रोडक्ट बैकलॉग। व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग इज द प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। अब यहां से 16 रिक्वायरमेंट आ गई, अब आप डिसाइड करोगे, अब आप स्प्रिंट बनाना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्प्रिंट 1 2 3 4 5, यहाँ से अब आप एक स्प्रिंट बनाओगे। यू हैव क्रिएटेड 1 स्प्रिंट, स्प्रिंट नंबर 1। कितनी रिक्वायरमेंट लोगे, 16 रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट ले लो आप यहाँ पे।
नाउ दिस टू रिक्वायरमेंट विल बी कॉल्ड द स्प्रिंट बैकलॉग। एक स्प्रिंट में आप जिन दो रिक्वायरमेंट को डेवलप करने जा रहे हो, लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, इसको बोला जाता है स्प्रिंट बैकलॉग। देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस स्प्रिंट। आप इस स्प्रिंट पे काम करना स्टार्ट करते हो। काम करने का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू डू द प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेवलपमेंट। आप टेस्ट करते हो और क्लाइंट को दे देते हो। वंस यू विल कंप्लीट दिस स्प्रिंट, मतलब आपने दो रिक्वायरमेंट ली, लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, आपने उसको बनाया और आपने क्लाइंट को दे दिया। यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस टू द क्लाइंट। नाउ क्लाइंट विल सी। अगर क्लाइंट को कोई इश्यू रहता है तो वो उसको हाईलाइट करेगा, अगर नहीं तो नहीं। तो क्या करते हैं स्क्रम में या अजाइल में, हम सारा रिक्वायरमेंट एक साथ डेवलप नहीं करते हैं। वी डिवाइड द रिक्वायरमेंट इनटू स्मॉल 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 स्प्रिंट। जब मेरा एक स्प्रिंट वन खत्म हो जाता है, देन आई विल मूव टू स्प्रिंट नंबर टू। अगेन जैसे मेरा खत्म हुआ, स्प्रिंट नंबर टू स्टार्ट करना है मुझे। अब मेरे पास यहाँ 16 में से 14 रिक्वायरमेंट बचे हुए हैं, क्योंकि दो तो डेवलप करके दे दिया मैंने। अगेन इन स्प्रिंट नंबर टू आई विल टेक अनदर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, एक दो तीन जो भी, बट इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 21 या 14 डेज का होना चाहिए। लेट्स टेक द एग्जांपल, हमने दो रिक्वायरमेंट और उठा लिए। जैसे दो रिक्वायरमेंट और उठाता हूँ, दैट विल बी पार्ट ऑफ माई स्प्रिंट नंबर टू। इसमें मैं तो प्लानिंग करूंगा। हाँ, क्या बोले सर? स्ट्रिंग नंबर टू जो सीरियल वाइज हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो सेम वही चीज में वो रीड कर रहा था। हाँ, तो स्प्रिंट नंबर टू में जाएंगे, एंड स्प्रिंट नंबर टू में मैं दो फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने फंक्शनैलिटी बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और फंड ट्रांसफर, दो मैं डेवलप करके दे दूंगा क्लाइंट को। तो अभी मैं वाटरफॉल में क्या करता था, एक साथ सारी चीजें क्लाइंट को देता था। नाउ इन अजाइल अब मैं क्या करूंगा, स्प्रिंट में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े डिवाइड कर दूंगा और क्लाइंट को देता जाऊंगा। ये सर बट आप लेकिन लीजिए। सर एक चीज पूछना था, लाइक इन स्ट्रिंग, मतलब हम इसमें जो अपने इसमें टास्क हैं उसको एक मतलब छोटे छोटे फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब दो दो टास्क में कर रहे हैं। लाइक एक दो टास्क का हमने 21 डेज का टाइम लिया है। इन बिटवीन ही क्लाइंट ने बोला कि जो सेकेंड टास्क हम करने वाले हैं, फंड ट्रांसफर में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो उस सिनेरियो में हम कैसे क्या चीज करेंगे? अगर तो हम आपका उनको, स्प्रिंट स्टार्ट हो चुका है, हाँ। मान के चलिए 21 डेज का स्प्रिंट है, फंड ट्रांसफर का रिक्वायरमेंट है। हम्म। जब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं कल से आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्प्रिंट प्लानिंग। ठीक है? वहां पे वापस हम्म। समझाऊंगा आप लोग को मैं। स्प्रिंट प्लानिंग फेस होता है जहां पे मैं प्लान करता हूँ कौन से रिक्वायरमेंट लूंगा, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो जब तक मैं प्लान कर रहा हूँ, तब तक जो चेंज करना है आप कर लो। जैसे ही मेरा स्प्रिंट स्टार्ट हो गया, मतलब स्प्रिंट स्टार्ट होने के बाद 21 दिन का स्प्रिंट था, यहां से मेरे 7 दिन निकल गए। अब अगर क्लाइंट बोलता है मुझे कुछ चेंज करना है, वी विल से नो। अब तो नहीं कर सकते सर चेंज। हमने 7 दिन पहले रिक्वायरमेंट डिसाइड की है, उसमें भी आप चेंज करने को बोल रहे हैं, नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंट। आप स्प्रिंट में कोई भी रिक्वायरमेंट ले आओ। एग्जाम्पल एक और चीज बताता हूँ आपको जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रिंट की, जिसके लिए स्प्रिंट लाया गया। जब भी हम किसी भी फंक्शनैलिटी को डेवलप करते थे, ये 16 रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर आपको इसमें एक 17वां रिक्वायरमेंट जोड़ना है, नए रिक्वायरमेंट, यू कैन से चैटबॉट। ठीक है? तो अगर इसको वाटरफॉल में करने जाओगे तो वापस बीआरडी बनाओगे, वापस एफआरडी में चेंज करोगे, वापस डेवलपर इसको देखेगा, इम्पैक्ट एनालिसिस एंड ऑल करेगा। बट जब हम इसको स्प्रिंट वाइज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों डिवाइड करते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम इस वाले रिक्वायरमेंट के लिए एक नई स्प्रिंट बना लेंगे। मान के चलो 16 रिक्वायरमेंट तक हमने स्प्रिंट नंबर 8 पे काम किया था, फिर क्रिएट द न्यू स्प्रिंट एज स्प्रिंट नंबर 9 और उसको डेवलप कर देंगे। ये आसान है, चेंज आया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नया स्प्रिंट बना के हम लोग कर देंगे। बट अगर मेरा एक स्प्रिंट 21 डेज का स्टार्ट हो गया है, मतलब 4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, फिर क्लाइंट बोलता है नहीं वापस में चेंज करना है, तो पॉसिबल नहीं। इन जनरल सिनेरियो ऐसा केस आता भी नहीं, ओके क्योंकि सर। हमने 4 दिन पहले डिसाइड किया कि करना क्या है हमको। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्प्रिंट, द स्कोप ऑफ वर्क कैन बी चेंज। आफ्टर स्टार्टिंग द स्प्रिंट, माई स्कोप ऑफ वर्क कैन नॉट चेंज। ओके सर्विस? ओके। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ये स्क्रम रोल एंड रोल, ये पहले से इजी है। स्क्रम मास्टर का एक रोल हमने पढ़ा था,
जो लड़की क्लास में था, स्क्रम मास्टर क्या होता है? स्क्रम मास्टर इज द पर्सन हु विल मेक श्योर ऑल द स्क्रम वैल्यूज प्रैक्टिसेस एंड रूल्स आर इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड। इसका मतलब ये होता है, वेन एवर वी आर वर्किंग इन द स्क्रम, यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। आपकी सोलर रिक्वायरमेंट आए, उसको आप कहाँ डालोगे? प्रोडक्ट बैकलॉग में डालोगे। उसके बाद वो स्प्रिंट बैकलॉग में जाएगा। उसके बाद यूजर स्टोरीज क्या होती है आपको बताऊंगा मैं इन अवर नेक्स्ट क्लासेस। यूजर स्टोरी बनाओगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाओगे, तो यहाँ कुछ रूल्स हैं। इन रूल को फॉलो कराने का काम होता है आपका स्क्रम मास्टर का। स्क्रम मास्टर और क्या काम करता है? ये चेक करता है कि आपकी टीम ने क्या टारगेट किया था और क्या उसने अचीव किया। जैसे नैन्सी ने बोला था, ही इज द नेक्सस, मतलब ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द टीम। ही विल ट्राई टू मेक श्योर ऑल द इम्पेंडिमेंट, मतलब ऑल द चैलेंजेस विल बी क्विकली रिमूव। किसी को कोई परेशानी है, उसको रिमूव करने का काम करता है आपका स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर will be the person who will work with the management and team to institute the product owner as well। ये प्रोडक्ट ओनर की भी हेल्प करता है। फिर हमने आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट की प्रोडक्ट बैकलॉग से। ओके, ठीक है ठीक है गाइस, ये आप लोग को भी समझा? नैन्सी, सर्वेश, Yes, sir. वेंकट, वापस में Yes, sir. रिवाइज हुआ होगा तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, राइट? Yes, sir. ओके, so thank you so much all for joining today's session. Have a great night ahead. Good night guys. Thank you. Good night, sir. Good night. Bye. Good night.